her father. That's what I'm saying. It has been mentioned that she did not. शादी के कुछ टाइम बाद ही आपने एक मैकबुक प्रो और 5 लाख रुपए मांगा था हनीमून के लिए. Please look at me, don't look at them. Let me be very clear. This is the second or third time you councils are doing that. Why? Fourth time. You are not supposed to argue amongst yourself. If you raise the objection, let us decide and then let you know whether it should be overruled or it should be sustained. व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो. सो गाइज, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है उनके लिए जो कि लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ कर रहे हैं या लॉ एस्पिरेंट हैं, लॉ करेंगे, उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. हुआ यूँ कि आज हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन था ट्रायल एडवोकेसी का, जो कि 3 दिन चलेगा. तो इसमें पूरा मैंने दिखाया, पूरा शूट कराया कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं. मतलब जैसे कि पूरा आपने देखा होगा कि कैसे केसेस वगैरह लड़े जाते हैं एक चीज़ को लेके, ठीक है. तो इसमें मैंने पूरा दिखाया. बाकी जो जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं सब समझ आएंगे कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा. बाकी ये बोलूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी चीज़ें समझ आएंगी. थोड़ा शुरू में बोरिंग चलाएगा, बट लास्ट में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं. जब विटनेस से ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह करे जाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. पूरा मैं तो ये कहूँगा पूरा वीडियो देखना अच्छे से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है तो बोरिंग ऐसे लगेगी, बट एंड तक देखना, पूरा अच्छा मज़ा आ जाएगा. तो केस बता दो. केस ये था कि केस में ये दिखाया गया है कि भाई एक लेडी होती है, उसकी डेथ हो जाती है. तो इसमें दिखाया गया है कि मतलब कि हस्बैंड उसकी, मतलब जो उसकी डेथ होती है वो स्नेक बाइट से होती है. तो इसमें दिखाया है कि जो उसका हस्बैंड होता है लेडी का, और उसकी हस्बैंड की जो माँ होती है, उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी है या मतलब जानबूझ के सांप से कटवा दिया, ऐसे ऐसे बताया गया है केस में. और एक तरफ प्रोसिक्यूटर, एक तरफ डिफेंडेंट है. तो ये सब पूरा केस चल रहा है ऐसे. तो बाकी आप पूरा वीडियो में देखो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाकी चलो वीडियो देखो पूरी. तो अभी हमारा यहाँ पे मूड कोर्ट कंपटीशन होने जा रहा है, और कोशिश करता हूँ पूरी वीडियो बनाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा क्या हो रहा है यहाँ पे. हमारे साथ के बैठे बंदे नासिर भाई, अभी तैयारी चल रही है यहाँ पे. Please accept this. May it please the court. Good morning. The council seeks permission to address the bench collectively as litigation. May it please, my name is Kanji Saxena, and I'm appearing for the prosecution in this action along with my co-counsel Ms. Devanjali Chakraborty and the researchers Tuti Putela, appearing for the case of State of Maharashtra versus Vijay Kumar and Nirmala Devi. The counsel for prosecution has appeared in the Honorable Session Court under the section of 177 of the Code of Criminal Procedure Act 1973, led with section 209 of CRPC, where the session court has the power to take had a dark complexion, had low IQ, and had some social interaction problems. Shiv Shankar, father of Shweta, is a businessman. Due to social pressure and family pressure, and not the fixing alliance of Shweta, he was mentally stressed. Brijesh Kumar, father of Vijay Kumar, came through a marriage broker where Vijay Kumar was a graduate and unemployed person from middle class family. His house was run on the pension of his paralyzed father. The alliance of Shweta and Vijay was fixed by the parents of Vijay and Shweta via video. They had a lavish wedding, and some gifts various gifts were given to Shweta. चलो शुरू. अरे फिर आ गया, क्या दिक्कत है ना. They had a lavish wedding at Hotel Taj Mahal, and some of the gifts were given by Shweta's father, such as a Toyota furniture car, 25 lakh rupees, 1.5 kg gold, एक आध बोतल इधर भी ले जाओ भाई. 3 acres Vaina with Khane, which he gets revenue of 5 lakhs per month. During the private conversation, Vijay has to wish a renovate house into 2-story building. The same Shweta has communicated to
to renovate the house. The Shweta's father has the Shweta's father submitted the money 50 lakhs for the renovation of the house in the joint account of Shweta and Vijay. Vijay renovated the house to two-story and with an Italian marble floors and has a AC in that. After some days, he also asked for 5 lakhs for honeymoon and Apple MacBook for managing the business. Vijay felt happy when he renovated the house. Good morning. We are the counsel for the defense. I am Mr. Nikalwan and she is Mr. Priya and she is the researcher Shresha Verma. The counsel seek permission to address you as your learned bench. Much obliged to learned bench. The counsel seek permission to approach the dice. Much obliged to learned bench. The counsel seek permission to give the opening statement. Much obliged to learned bench. The defendant has approached this court under the section 177 and 209 of the CRPC. The defendant stands here today wrongly accused of the crime under section 120B, 302, 304B and section 498A of the Indian Penal Code 1860 and under the section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act 1961. This is a case of the coincidence and extreme and arbitrary conclusions which are being shown as a planned murder. For instance, male presence of a dating apps and search history of the venomous reptiles in the accused number 1's phones, that is a Vijay Kumar, is wrongly concluded as an unsatisfaction in a marriage and planned for murder be violent. At the end of our arguments, we are going to ask you, my learned batch, to accuse the accused. What are your evidences? My evidence is yes. Can I ask? So that was your prayer, right? Yes, yes, correct. In chief and cross examination mentioned under section 137 of Indian Evidence Act. Much obliged. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई किंग कोबरा वो विंडो के थ्रू आके किसी को मार सके मतलब कैन इट कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम जैसा कि यहाँ पे बोला गया है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल हो सकता है, पर स्नेक का डेड मिलना ये सस्पिशियस है. I would like to bring the attention of the court. Even in the autopsy report, it has been mentioned that the cause of the death was due to snake bite and the methylhexanone sodium, which is generally used for the purpose of anesthesia and it is not available easily in the market. I mean, it is just for the purpose of surgery or in cases where it is like for the surgery of cases which is important in medical cases. It is available. It's not available in the general prescription. So this was found in the body along with the venom of the snake, the cobra bite. So you are saying that this is murder and it's not accident? No, ma'am. I can state this. Sorry, Your Lordship. I can state this because where Vijay and his family were staying in Thane, it is impossible for a sighting of the cobra. It is if we conclude and if we see there is a place called there is a place where we can see it is 10 hours from Thane. Like generally venomous snakes like may I proceed with the cross-examination? My dear counsel, you did not keep a track of the time, right? So the judge is not agreeing
Firstly, you mentioned, आपने mention किया था कि आपको जब आप investigation कर रहे थे कि विजय कुमार और निर्मला देवी की behavior normal नहीं थी. Can you please explain this? क्या normal नहीं था, क्या मतलब? जिस हिसाब से उनके घर में डेथ हुई थी वो लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ है नहीं। जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल कर रहे थे, कोई भी वो नहीं था। ये भी तो possible है कि वो emotional हो गए उस time पे, shocked हो गए बहुत ज़्यादा. इमोशनल भी नहीं लग रहे थे क्योंकि वो अपने डेली घर का रूटीन जैसे होता है उस टाइप से थे। Thank you. I'd like to ask Peter to do Mr. Station, Dr. Station Kumar. Dr. Station Kumar. I'd like to ask for the voting procedures. आपने मेडिसिन एग्जामिन किए थे जो श्वेता ले रही थी, आपको पता होगा कि कुछ मेडिसिन ले रही थी, आपको पता है क्या है, क्यों ले रही थी, ये क्या यूज होता था उसका? आई डोंट नो, जैसे मैंने उनकी एग्जाम किया तो मुझे वहाँ पर उनके जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे उनके बोर्ड में बहुत सारे जैसे ड्रेसेस और मैंने उसके बच्चे ये मिले एंड देन वहाँ पे नहीं तो ये तो दूसरी चीज है ना, मैं पूछ रही हूँ कि आपने श्वेता कुछ मेडिसिन ले ली थी, प्रिस्क्राइब, आपने उसको एग्जामिन किए? मेडिसिन एग्जामिन किए मैंने, तो उनमें कुछ जो केमिकल्स वगैरह वो भी फाउंड हुए थे जो कि उनको उनकी बॉडी के लिए बहुत ही मतलब उनकी बॉडी में बहुत पॉइजनस वगैरह ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ था, जो मेडिसिन वगैरह ले ली थी। Are you sure कि मेडिसिन पॉइजनस था? वो बचपन से ले रही थी वो मेडिसिन? नो आई एम नॉट श्योर, बट वो जो मेडिसिन दे रही थी वो थोड़ी जो के लिए अच्छी नहीं थी। It's okay. तो is it possible कि उनका जो ड्रग्स था और given कि वो बचपन से ले रही थी तो obviously श्वेता की वीक कंडीशन थी, राइट, वीक हेल्थ कंडीशन थी, और ये भी मेंशन किया गया था कि जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उसके पहले she was starving, वो भूखी थी, because of her husband, that's not the point, but point is she was starving. Is it possible कि उस ड्रग्स की वजह से वो intoxicated हो गई हो, क्योंकि साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो कि मेंशन किया गया है चार्जशीट में जो कि वो लेती थी उसके साइड इफेक्ट डिजीनेस और ड्राउजीनेस भी होते हैं। इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है साइड इफेक्ट इसका? आपने तो एग्जाम ही नहीं किया, अभी तो आप कह रहे हो कि वो पॉइजनस थे। बट वो हो सकता है मे बी क्योंकि वो ज़्यादा पॉइजनस नहीं थे, वो हो सकता है कि उनको जो स्नेक बाइट्स मार्क्स थे तो नो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट स्नेक बाइट, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि क्या वो जो मेडिसिन ले रही थी और उसकी वीक कॉन्स्टिट्यूशन थी और जो वो मेडिसिन ले रही थी और पिछले दिन वो भूखी भी थी, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते? इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आप हो सकते हैं, राइट? हो सकते हैं बट कुछ केस में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, बट आई एम द पैथोलॉजिस्ट, आई नो इट वेरी वेल। इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हो सकते हैं कि नहीं, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। थैंक यू। आई वुड लाइक टू आस्क टीपी सिंह नाउ। And let the court proceed in much of that. आपने मेंशन किया था कि आपको सर्च हिस्ट्री में वीडियोस मिले थे डिलीटेड एंड डेटिंग ऐप्स मिले थे जिसे डिलीट कर दिया गया। अब क्या ये पॉसिबल है पता करना कि ये कब अनइंस्टॉल किया गया था या कब डिलीट किया गया? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल क्योंकि जब मैंने मोबाइल का सेकंड जुलाई को मैंने जब उनका मोबाइल लिया तो वहाँ पे मुझे वो अनइंस्टॉल ऐप्स मिले, देन रिकवर करने के बाद वो फिर से इंस्टॉल हुए, तो मुझे 3 डेटिंग ऐप्स मिले थे उसमें। यस। और सर्च हिस्ट्री और वीडियो हिस्ट्री कब डिलीट किया गया था? सर्च हिस्ट्री जो उनके वीडियोस के थे वो आई थिंक जो 1 हफ्ते पहले डिलीट किए गए थे। Lastly, I'd like to ask Shrisha. Again, I'd like to ask you questions. लड़की का बाप
कि आप बहुत स्ट्रेस थे अपनी बेटी को मैरिज को लेकर के हमेशा से, राइट? तो आपको ये भी पता होगा कि जो उसका would be husband है, यानी कि जो विजय कुमार है वो अनएम्प्लॉयड था, राइट? फिर भी आपने शादी की और लैविश मैरिज हुआ था, इतने सारे बहुत सारी बेबीज दिए आपने। इससे भी ये तो पता चलता है कि आपने कंसेंट तो किया था, फोर्सफुल तो नहीं हो रहा था ये, भले आप स्ट्रेस थे या कुछ भी, करेक्ट? और भले वो अनएम्प्लॉयड है, क्यों आपने शादी की? नहीं हो वो एम्प्लॉयड पहले था, लेकिन मैं अपनी बेटी का भला चाहता था, उसका शादी हो नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने उसकी शादी में कुछ पैसे भी दिए और This point has to be noted that he was happy. He did this for his daughter's marriage and he gave the gifts for his daughter. और एक और चीज, आपने बहुत सारी चीजें मेंशन की गई कि आप कॉल पे बात करते थे श्वेता से, राइट? आप पूछते भी होंगे, हर कोई पूछता है कैसे हो बेटा, राइट? कैसी हो बेटी, क्या कर रहे हो, ये तो पूछते होंगे आप। सास का नेचर कैसा है, ये सब तो सब पूछते होंगे। उसने कभी निर्मला देवी के बारे में मेंशन किया, कैसे है उसकी सास के साथ मैं बस उसका हाल पूछा, मैं उसके फैमिली के मेंबर्स के बारे में। ऐसा कहा, एक बार तो कहा गया था कि आपने विजय कुमार के बारे में पूछा था तो उसने 50 लाख, सॉरी उसने हाउस के बारे में मेंशन किया था कि विजय कुमार हाउस को रेनोवेट करना चाहता है। हाँ, तो विजय Objection, कुमार Your Ladyship, they're asking leading questions which is not. I think it is clearly mentioned in the facts that the Kindly repeat your question. I'm asking, मैं अभी इन्होंने कहा कि वो कभी भी विजय कुमार के बारे में नहीं पूछते, अपने बेटी के बारे में पूछते हैं। प्रोपोजिशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि उसने एक बार विजय कुमार के बारे में पूछा था, तब उनकी बेटी ने बताया कि उनका उसका हस्बैंड बहुत ही सैड है और वो हाउस को रिनोवेट करना चाहता था अपनी वाइफ के लिए, खुशी के लिए। ऑब्वियसली ही इज आस्किंग नहीं Objection overruled, madam. इट्स ओके। तो आप कहना चाह रहे हो उन्होंने निर्मला देवी के बारे में मेंशन किया, ठीक है? एक और बात कि वो आपकी बेटी इतने दिन से आपको से जानते हो और उसके नेचर बिहेवियर सब जानते थे, आपको कभी कुछ नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है? मेरी बेटी अपने ससुराल में थी, मैं जब बात करता था उससे तो वो काफी सही लग रही थी। That's exactly the point, because there was nothing there. Objection, Ladyship. It has already been mentioned that she had societal problems and behavioral issues. I'm not denying that, but she has not. She wasn't able to communicate well about the things. Even it has been mentioned. I'm talking about her father. That's what I'm saying. It has been mentioned that she did not communicate even if she was suffering. Okay, that I understand. But you're saying that he knew that, right? He knows that. Counsellors, you are not supposed to argue amongst yourself. I hope you know that. And my dear counsel, you were given the time, right? You were given your time to speak. Yes. You were. So be seated. Objection overruled. आप ये बताइए कि वो विजय कुमार के बारे में कैसे बात कर रही थी? खुश थी, उदास थी, नॉर्मल थी, कंप्लेन नहीं करती थी जैसे कि उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स थे? हाँ, वो किसी भी चीज के बारे में कंप्लेन नहीं करती थी, उसका जो विश रहता था वो मुझसे बताती थी, तो मैं एज अ फादर उसको पूरा करने का कोशिश करता था। तो मतलब वो खुश थी, कैसी थी वो ससुराल में अपने जाकर के? हाँ, तो आपको फील, जैसे क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी को वो ज़्यादा ओपन अप नहीं होती है, तो ऑब्वियसली आपके तरीके होंगे ना पता करने के कि उसके नेचर से, उसके बात करने के तरीके से कुछ ना कुछ तो पता चल गया। आप उसके फादर या ऑफर हो, बात करने के तरीके से ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की खुश है कि नहीं है? तो मैं बात उससे करता था तो मुझे लगता था कि वो सही है, और उसने जो विशेष मांगी मैंने उसको सारी विशेष उसकी पूरी की, तो उससे मुझे भी अच्छा लगता था। Thank you. The council seeks permission to call EW1, that is Vijay Kumar, to the written clause. The council seeks permission to ask the witness in
विजय कुमार, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार है। मेरा नाम विजय कुमार है। प्लीज आप श्वेता के बारे में बताइए, कैसे थी वो, आपका और उसका रिलेशन कैसा था? जी, मेरा श्वेता का रिलेशन जो था वो काफ़ी मतलब हमारे को काफ़ी स्नेह और प्यार था। हम दोनों मतलब एक दूसरे के लिए थे। और श्वेता, मैं मेरा हमेशा से यही मानता था कि मैं श्वेता को खुश रखना चाहता था, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। अच्छा, ओके। आपने श्वेता से 50 लाख रुपए डायरेक्टली मांगे थे? जी नहीं। तो उनके आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए आए थे, कैसे, क्यों? जी, हुआ ये कि आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि मेरे घर रोजगार था, घर की आर्थिक तंगी के कारण मेरे पास इतना धन नहीं है तो श्वेता को जिंदगी दे सकूँ। उसके पिता जो है मेरे आगे से शुरू नहीं, तो इसी कारण मैं हमेशा यही सोचता था कि क्यों मैं अपनी पत्नी को वो जिंदगी दे सकूँ जो वो चाहे, जो वो जीना चाहे। और मैंने उससे सब में दिल की बात करी थी। तो आपको ये नहीं लगा कि आप खुद जॉब करके इतना कमाए और उसके बाद उसे वो जिंदगी दे, आपने उसके पागल से पैसे मांगे? जी, मैंने गारंटी इसलिए मांगी क्योंकि मैंने पैसे पहली बार मांगे थे। दूसरी चीज़ नहीं मांगे थे। जी मांगे थे, मतलब लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मैं अपने लिए मैं मुझे बिजनेस सीखना था, तो इसलिए मैंने मांगे थे ताकि मैं बिजनेस करा सकूँ। एक बार नहीं मांगे, एक बार आपने एक बार डायरेक्टली मांगे, एक बार इनडायरेक्टली मांगे। इतने टाइम में आपको ये नहीं लगा कि आप खुद इतना कर सके? आपको जब डाउरी में पैसे मिले थे तब उसमें मिले थे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, आपको वाई कार्ड मिला था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। तो ये थोड़ा स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद दैट मनी। मुझे उस समय बिजनेस करना कोई आइडिया नहीं था। जब मैं श्वेता के साथ रहने लगा मुझे लगा कि मैं उसको जिंदगी देना चाहता हूँ, तब मैंने डिसाइड किया कि बट आपको जमीन भी तो मिली थी ना एज अ गिफ्ट फ्रॉम द फादर इन लॉ, तो व्हाट डिड यू डू विद दैट लैंड? जो उस लैंड को अपने फ्यूचर में रखा था, जब हम अपना कभी वहाँ पे कुछ करें उस हिसाब से अवेलेबल है तो उस लैंड को यूज करें। उस लैंड को उसको दिमाग में नहीं सोचने का मैंने ये मेंशन किया था कि आपको बिजनेस संभालना तब तक नहीं आता या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। आप क्लैरिफाई कर सकते थे, आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर आप उस बिजनेस संभालना नहीं आता? जी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आप बोल रहे हैं आपके पास पैसे नहीं थे, पर जब शादी के दौरान आपको 1.5 kg गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 25 लाख रुपीस, 3 एकड़ का एक वाइन यार्ड मिला था, क्या ये सच है? पर क्या ये बिजनेस के लिए मिला था वाइन यार्ड? जो 5 एकड़ का बिजनेस जो वाइन यार्ड मिला था ये बिजनेस पर्पस के लिए था? ओके, आप ये बोल रहे हैं कि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, ठीक है। आप ये बताइए मुझे कि शादी के कुछ टाइम बाद ही आपने एक मैकबुक प्रो और 5 लाख रुपए मांगा था हनीमून के लिए, जी? आप अग्री करेंगे इनसे? जी। तो अगर आपको ऑलरेडी 25 लाख रुपए 1.5 kg गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, आप दोनों के रिश्ते, जैसे कि आपने बोला कि आपके और श्वेता के रिश्ते बहुत अच्छे थे, क्या ये बात सच है? तो श्वेता जरूर अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करती होंगी, पैसे हो या ऑर्नामेंट्स हो, वो शेयर करती होंगी। जी, वो कभी इतना गलती नहीं की मुझसे। पर आप लोग के बीच में रिलेशन तो बहुत अच्छा था ना? आप उनसे घुल मिल गए थे, पर वो नहीं घुली मिली थी आपसे, तो कैसे ये रिश्ता बहुत अच्छा हुआ? ऐसी बात नहीं, रिश्ता हमारा काफी अच्छा था, बस उनका नहीं करता कि वो मतलब ज़्यादा बात नहीं करते। और आपने अपने चीफ एग्जामिनेशन में ये बोला मैं कि हमेशा उनसे पूछता था कि आप लोग को तो हमेशा मैंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं। नहीं।
सी दिक्कत। सर दिक्कत की बात तो बाद में आएगी, पहले आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि 5 लाख रुपए जो आपने लिए हनीमून के लिए, आप ऐसी कौन सी जगह पे हनीमून के लिए गए थे कि आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी? अच्छा कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप मुझे ये बताइए कि आपको मन था कि श्वेता को आप कंफर्ट दें, आप एक डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते थे उनके लिए, क्या ये बात सच है? ओके, तो क्या श्वेता ने कभी खुद से बोला है कि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है तुम्हारे घर में रहने से, ऐसा कुछ बोला है उसने कभी? नहीं बोला है। आप खुद से चाहते थे? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बताना नहीं चाहती है, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का आभास था कि जिस जगह से हुआ है, जिस रहने से हुआ है, यहाँ पे रहने और वहाँ रहने में काफ़ी फर्क था, काफ़ी अंतर है। तो मुझे ये बात हमेशा मेरे हृदय मस्तिष्क में रहती थी कि काश मैं उसको वो जिंदगी दे सकूँ जो वो जहाँ वो अपने बेटा के जाने की वजह से रहता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने घर बना लिया, ठीक है, 50 लाख रुपए जो आपने मांगा, आपको ये पता था कि श्वेता आपकी मम्मी नहीं है? जी आपको इन्फॉर्मेशन था? आपको ये पता था कि श्वेता अपने पापा से कितनी क्लोज है? आपको नहीं पता था? श्वेता इज ओनली रिलेटिव वाज हर फादर, तो आपको ये बात नहीं पता था कि वो क्लोज है अपने पापा से? Objection, the council asking irrelevant questions. नो, इट हैज रेलेवेंस, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो आप ये बता दीजिए मुझे कि आपको ये पता था उसके रिलेशंस कैसे थे अपने पापा के साथ? काफी अच्छे थे, आपको ये बात आइडिया था? तो आपको ये पता था कि वो अपने पापा के साथ हर बात शेयर करती थी? तो आपको ये भी पता होगा कि वो 50 लाख, प्लीज लुक एट मी, डोंट लुक एट दैट। आपको ये भी पता होगा कि 50 लाख रुपए उसने अपने पापा से मांग भी सकती है वो? Objection, he never asked for it. He indirectly Rule, let her proceed. You got your time to speak, let the council speak. मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि वो अपने पिता की से पैसे मांगे या कुछ भी। मैंने बस सोचा अपने दिल की बात है। और उन्होंने पैसे भेज दिए तो उसमें और फिर आगे खोल के देखता हूँ कि मेरे जॉइंट अकाउंट में 50 लाख जमा हो गए। तब जब मैं मुझे लगा कि तो मैंने तो कभी उनसे बोला नहीं। अच्छा, मतलब आप बोलना चाहते हैं 50 लाख रुपए मिल गया, मैं तो खुश हो गया, अब मैं लौटाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि 50 लाख रुपए तो आ गए ना मेरे पास। आपने कभी कोशिश नहीं किया कि आप फिर लौटा लें वो पैसे वापस? आप क्योंकि आप चाहते नहीं थे ना, आप लौटा नहीं सकते थे उसको वापस। जो श्वेता जी से आते हैं, श्वेता के लिए पैसे नहीं थे, बाकी ठीक है, आप वाइफ से उनसे गारंटी पैसे मांगे नहीं थे कि आप मेरे अकाउंट में आपने नहीं मांगे, मैंने मान लिया आपने नहीं मांगे, पर आप लौटा भी सकते थे पैसे उनको। आपने लौटाया? कोई बात अपनी बेटी के लिए पैसे भेज रहा है। बेटी और बेटे जॉइंट अकाउंट में, लड़की के अकाउंट में नहीं आया, जॉइंट अकाउंट में आया। आपके पास भी कंसेंट था कि आप भी भेज सकते थे पैसे, भेज सकते थे। तो जो मेरा कुछ उसमें था ही नहीं तो मैं क्यों भेज? अब जॉइंट अकाउंट में अगर आया है तो क्या वो सिर्फ श्वेता का है, आपका नहीं है उसमें? हाँ जी, श्वेता ने जी श्वेता ने अपने पिताजी से ऐसी कोई बात कही होगी कि जॉइंट अकाउंट में पैसे भेज दो। पर फैक्ट में कुछ लिखा नहीं, उन्होंने जॉइंट अकाउंट में खुद से भेजा है, वो आपके पर्पस के लिए भी होगा। उन्होंने जॉइंट अकाउंट में खुद से भेजा है तो वो आपके पर्पस के लिए भी होगा। तो आपका कंसेंट नहीं था, आप तो भेज सकते थे वापस। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आपका रूम जो था, आपने क्या क्या रिनोवेशन करवाया उस रूम में? जी हमने 3 स्टोरी 3 मंजिला मकान बनवाया है। क्या दिन 3 मंजिल है? आप श्योर है? आप श्योर है? श्योर है? हर जगह पे फिर डबल स्टोरी क्यों लिखा होगा अगर 3 मंजिले वाला होगा? चलिए 3 मंजिला आप बोल रहे हैं, हम वो भी मान लेते हैं। नेक्स्ट आप बताइए मुझे क्या क्या करवाया अपने घर पे? सिंपल रिनोवेशन। मुझे लगा आप मॉडर्न फैसिलिटीज देना चाहते हैं अपने वाइफ को। सिंपल रिनोवेशन करवा के छोड़ दिया आपने? हाँ, तो मॉडर्न फैसिलिटीज में क्या क्या आता है? जी वही सब जो हर घर में होता है वही चीज। नहीं, मुझे नहीं पता ना, बताइए मॉडर्न फैसिलिटीज में क्या क्या आता है? सॉरी, बस और यही कुछ मतलब कैसे? आप प्लीज थोड़ा तेज बोलिए, मेरे बालकनी बनवाई। क्या ये मॉडर्न फैसिलिटी है या ऐसे हर घर में होता है? चलिए मान लीजिए। और मॉडर्न, मॉडर्न नहीं देखो कि हम तो वैसे भी गरीब परिवार से हैं। ठीक है। अच्छा,
Please, I'll go to the reference. Please give me. Okay, my dear councils, do not argue amongst yourself. If you do that again, you will be facing the contempt of court. Let me be very clear. This is the second or third time you councils are doing that. Fine, fourth time. You are not supposed to argue amongst yourself. If you raise the objection, let us decide and then let you know whether it should be overruled or it should be sustained. You are not supposed to counter the objection raised by the other council. Are you? Are you supposed to do that? Right? So you are aware of it? Then why you people are doing that? You will be liable for contempt if you do that again. Keep in mind. It's caught in the crossfire.